Hello, my dear Instagram family. I'm sorry, I think I had a technical glitch because of which the live had ended. I want to share that I'm truly, absolutely thrilled to share with you that today the guest that I have with us is an amazingly humble and beautiful soul that I met, whom I met, during MMI that has held in Delhi. And he is such a humble soul, and I am, it was his birthday. That is how I met him that day. Thaddeus has told us that whoever comes across him must celebrate him, must congratulate him on his birthday, and share best wishes with him. And in even if we do not come across with him, he actually said that go and wish him. And I still remember that I went up to him, I wished him that day, and thereafter this bond was created. Then I saw him in the MMI group that was created after this MMI event that happened in Delhi. And the way he has been sharing the insights and the nitty gritties of coaching business is absolutely phenomenal. And I love the way he is so humble and so kind hearted that even though he has accomplished a lot, he still is such a pure soul from his heart. Let me introduce him. Let me welcome a few people who are here. Hi, Abdullah. Thank you for joining in. Hello, Madhulika. Thank you for joining in. And yes, Abdullah Ansari is that person. Let me share very quickly a little about him. He calls himself as India's leading service business coach, and I would say absolutely phenomenally right, and very rightly he calls himself so. He is a co-founder of Mulberry Weddings and has transformed the businesses of over 100,000 photographers, and recently he hit a 10 crore milestone as well. When I heard that, I was awfully, I would say I was like, oh my god, what a beautiful journey he has, covered. And why not call him on and, ask him about his journey and what made it possible for him. And because I know there are so many coaches who follow me, and, it will bring massive value to multiple people who would be thinking ki ab kya kare, kaise kare, and all of that. So today he's joining us to talk about how he digitalized his coaching system, how he scaled his services business, and created a massive impact. So let us give lots of emoticons on this in the comments and welcome him. Around your coaching, how to go ahead, what is it that is stopping you, or anything, feel free to put it in the chat so that he can answer all the questions. Hello, Abdullah. Thank you so much for joining in. Thank you so much. That's amazing. Arey That's wah. amazing to be here. The commitment level that you show is absolutely profound. I still remember that in the morning you told me that you might be traveling, and yet you chose to be here with us on this live. Is oh my god, heartwarming. Deep gratitude to you. थैंक यू सो मच. अंदर बर्थडे चल रहा है किसी का. मैंने कहा आता हूँ मैं जरा थोड़ा सा इंस्टाग्राम लाइव पे. फिर माय माय टीम मेंबर बर्थडे चल रहा है. मैंने कहा हो गया अभी. Oh, अभी मैं थोड़ा बाहर जाता हूँ. all right. And how are वेरी you? नाइस. मैं बहुत अच्छा हूँ. सोच रहा हूँ उसको कैसे रखूँ मैं. एक मिनट रुको जरा. इसका कुछ बढ़िया बनाना था. सही बैठ जा भाई. कुछ बढ़िया से बैठ जा. हाँ. मैं बहुत बढ़िया हूँ. एकदम बहुत मस्त. आप बताओ. Wonderful. Thank you, Abdullah. First of all, I want to pay deep gratitude to you to accepting this proposal of being live with me here on this यस platform. यस. And थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द प्रिविलेज टू कम ऑन दिस कॉल. no, it is my privilege. It is my honor to have you here, Abdullah. I have shared a little about you as of how much I know you right now. Would you please introduce yourself the way you would like to introduce yourself to the audience here? So guys, my name is Abdullah Ansari.
I consider myself, not consider, I'm an entrepreneur. I love to build businesses, and I have multiple businesses. Right now, I I'm a postgraduate from Indian Institute of Management, and after that I did not go for the placement. I started my own companies. Right now, I own a performance marketing agency for coaches, and I also have my coaching business as well. These two are primary ventures which I completely focus on. First one is agency for coaches, trainers, and consultants. Second one is my own coaching business. That's it. Wow, wonderful. Yes, Thank you for sharing that, Abdullah. You have recently, got awarded by Siddharth Shekhar for, 10 crores milestone. yes. First of all, congratulations on that. Thank you so much. You also shared with us that I think you had accomplished it around in the month of November itself, October October. last year. Right now it must be around 14 CR, 14 crore हुआ होगा. तो पता है क्या, we as budding coaches, we are interested in knowing more about that. हमारे तो 1 करोड़ नहीं हो रहा, हमारा तो 10 लाख नहीं हो रहा है, and you have achieved that this phenomenal milestone in last 2 years. Isn't that such a beautiful journey? I would like to know, how did you start, where did you start, what was the point in your life wherein you decided that you want to get into the digitalization and everything? Can you please share a bit? देखो भाई, सबसे सिंपल मेरा लॉजिक चलता है. पहले मुझे अपना पेट भरना है, फिर समाज का पेट भरना है. ठीक है. तो जब 2020 आया तो मेरा बिजनेस जो था प्रोडक्शन का वो नहीं चला. फिर मैंने कहा यार क्या करें. तो मैं अपना प्रोडक्शन बिजनेस को काफी स्केल पे करता था. प्रोडक्शन मतलब हम लोग शूट्स करते हैं, फिल्म्स बनाते हैं, कॉर्पोरेट शूट करते हैं, फिर वेडिंग फिल्म शूट करते हैं. लेकिन मैंने इससे काफी इनकम किया था. तो अब कोविड आया तो कोविड बंद ही हो गया. तो मैंने सोचा यार, मैंने इसको इतने अच्छे से स्केल पे किया है, क्यों ना इसको सिखाया जाए. उसको सिखाना स्टार्ट कर दिया. उससे इनकम होने लगी और अपना पेट भरने लगा. फिर अपना अपना स्वार्थ पहले आता है जब आप चीजें स्टार्ट करते हो. ठीक है. तो वो जब स्वार्थ फुलफिल हुआ तो फिर बड़ा बड़ा स्वार्थ आया कि अब लोगों के लिए करना है. ठीक है. और और अब उनके लिए सारी चीजें चलती हैं. तो इफ यू से कि if you ask like what one skill that is required to reach over here, you have to be very great at sales first. Second, you have to have a very great product. Second, third, like you have to create. You need to understand how does the traffic comes to you. So PST is the formula. SPT is the formula. Great sales, rank number one. Second is product. Third one is traffic. ट्रैफिक की तो बहुत प्रॉब्लम है, ट्रैफिक कहाँ से लेके आए? एंड वर यू ऑर्गेनिक और वर यू डूइंग द पेड कैंपेन्स एंड एड्स एंड ऑल? Traffic is not the problem. The way you are communicating in the traffic is the problem. That is why the traffic is not coming. Traffic is not the problem. If the traffic is a problem, then it must be problem to all. ठीक है. ट्रैफिक, जैसा आप अगर पेड एड्स चलाते हो या ऑर्गेनिक चलाते हो, जो भी चलाते हो, पेड एड्स में अगर आप एड्स चला रहे हो तो कितना इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर रहे हो कि ऑडियंस को पिंच हो रहा है. ऑडियंस को लग रहा है यार दिस लेडी और दिस पर्सन इज वेरी राइट एंड ही इज हिटिंग माय पेन पॉइंट. सो हम वही जेनरिक बातें करते हैं. हमारा कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग नहीं होता है. तो मैं जब एड में बात करता हूँ तो मैं डिस्टर्ब करता हूँ लोगों को. आई लाइक टू डिस्टर्ब पीपल. Disturb, like they will just pause and they will think what is going on in my life, right? And they will not be able to understand, and they will be just taking action. So I create those kind of very bold ads. So that gives me the sales for my webinar, for my page registration, and then I know how to sell inside. All right. What would you suggest अगर हम लोगों के पास अभी तो if we are not able to एक सेकंड देना मुझे, एक सेकंड monetize. देना. हाँ, एक सेकंड देना. किसको मुझे गाड़ी में कोई बैठ Yes. सकता है यार, पार्किंग पे ले जा सकता है. मैंने ये लेके बैठ जाऊंगा. मैं बैठ जाऊंगा, गाड़ी लेके चला जाऊंगा पार्किंग में. मैंने गाड़ी में लगाई थी, पार्टी अंदर चल रही है. ठीक है. कोई दिक्कत नहीं, आप गाड़ी में ले जाइए. पहले आपको लगाना ही पड़ेगा ना, आप यहाँ नहीं खड़े होंगे. हाँ ठीक है. तो मैं हाँ हेलो भाई. ओके ठीक है. करिश्मा
जस्ट थोड़ा सेकंड, मैं तो इधर शिफ्ट हो रहा हूँ गाड़ी की सीट पे, रुको, रुक जा। Is there any problem? नो नो, देयर इज नो प्रॉब्लम। मैं वैले में आके ना, मैंने कार अपनी मंगा ली थी। मैंने बोला कि चलो भाई, मुझे मेरा कुछ सेशन है, मतलब मेरा कुछ टॉक है, तो दे आर लाइक अभी वो हो गया सॉर्ट, आप भेज दीजिए, ठीक है। यस, वन सेकेंड। यस, आ रही है आवाज, आ रही है? हाँ जी. चलो, तो ठीक है, दैट दिस इज डन। क्या पूछ रहे थे आप? Acha, the question that I'm asking is कि not all coaches who are budding have the financial, this thing कि वो लोग सब, paid ads वगैरह कर सकें. So, how do you suggest that what is the best way to organically grow? यार, ऑर्गेनिक किया जाता है जितना, मतलब मैं जितना ऑर्गेनिक कोचेस को जानता हूँ, आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड जीतू, आईजी कोच, ठीक है, जीतू नाम है, 5 लाख फॉलोअर्स है उसके। तो ऑर्गेनिक ना प्रैक्टिस करने के लिए, इनिशियल जंप के लिए अच्छा है, बाद में तो जरूरत पड़ती है। बट इफ यू इवन आस्क मी कि शुरू में क्या करें, आई वुड सिंपली सजेस्ट मेक अ लॉट ऑफ रील्स, दैट इज वन ऑफ द आइडिया। गो वेरी ग्रेट विद योर कंटेंट, आप खूब सारे रील्स बनाओ, खूब बात करो, दुनिया जान की बात करो, जो मन में आए डालो रील्स में। कोई ना कोई रील ग्रो हो जाती, फट जाती है, उससे ट्रैफिक आएगा आपके पास, तो वो होगा। तो द फास्टेस्ट वे टू ग्रो ऑर्गेनिक इज पुट अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रील्स। बहुत दिन तक कुछ नहीं होगा, बहुत दिन तक कुछ व्यूज नहीं आएंगे, चलता रहेगा ये, इट इज, ठीक है। इफ यू हैव द, इफ द लॉन्गिंग इज हार्ड इनफ इनसाइड यू कि मुझे तो चाहिए, तो वो डिजायर जितना स्ट्रांग होगा ना, वो आपको खींच के लाके दे देगा। मैं अभी, मतलब आई ट्रूली बिलीव इन दिस थ्योरी के लोग इंस्टाग्राम पे रील्स पोस्ट करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन द चैलेंज एंड द प्रॉब्लम इज दैट कि वो पोस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट मैनिफेस्टिंग दैट इट विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है। वो डाल तो रहे हैं, लेकिन अंदर से उनको फायर नहीं कि आएगा। तो मुझे, आई नो लॉट ऑफ पीपल जो 45 दिन में, 40 दिन में 2-2 लाख फॉलोअर्स पे चले जाते हैं, जस्ट बिकॉज द फायर इज वेरी स्ट्रांग इनफ कि भाई करके लाना है, राइट। तो आई स्ट्रांगली फील दैट कि ऑर्गेनिक रील्स डालो को, एक ना एक चमक जाएगा और फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वो नेटवर्क से जाते हैं, नेटवर्क नेटवर्क का ही तो इशू है सर। भाई नीचे लेकर जा रहे हो, तो एक काम करो, आप मेरी गाड़ी में पार्किंग ले जाओ। भाई नेटवर्क नहीं आएगा तो बात कैसे करूंगा? गिव मी अ सेकंड, एक सेकंड। यस पूजा, मुझे एक सेकंड देना, सॉरी करिश्मा, एक सेकंड देना मुझे, मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ। ऑल राइट, ठीक है, आवाज आ रही है? करिश्मा, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, यहाँ अच्छी Yes. जगह है, ये बढ़िया जगह है, अच्छा लग रहा है, चलो। Hmm. I यस, hope all is good. हाँ सब बढ़िया है। अरे मेरा देखो वहां पे ना, आई शो यू, वहां मेरी वाइफ बैठी हुई है उसके अंदर, ठीक है, वो तो अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो बाहर आके बैठ गया, सिंपल। Oh, to call her along now. She'll also नहीं नहीं, join us अरे वो online. तीन चार लोग हैं, बर्थडे मना रहे हैं अच्छे से, मैं थोड़ा बोर हो जाता हूँ, इसलिए बाहर आ गया वापस। All right. So Abdullah, what I want to ask next is, how much is personal branding important at the beginning of this journey? And do you have any tools and techniques or tips that you can share with us? पर्सनल ब्रांडिंग, ओके। पर्सनल ब्रांडिंग किस लिए चाहिए? पर्सनल ब्रांडिंग का अल्टीमेट गोल क्या है? किस लिए चाहते हैं लोग? ऑब्जेक्टिव कुड बी डिफरेंट, व्हाट इज द गोल ऑफ दैट पर्सनल ब्रांडिंग? So many people keep on saying, there has to be some branding, there has to be some personal branding and अरे everything. नहीं यार, These वो words अच्छा, are ब्रांडिंग, coming in many. ब्रांडिंग चाहिए किस लिए? उससे होगा कि अल्टीमेटली सेल्स में हेल्प करेगा ना, इसलिए बोलते हैं ना। Yes. देखो, अगर आप कोई सर्विसेज सेल कर रहे हो, लेट्स से आपकी एक कंसल्टिंग कंपनी है, या लेट्स से आपकी एक फोटोग्राफी कंपनी है, तो वो कैसा ब्रांड, वो कैसा होता है? जैसे आई गिव एन एग्जांपल, जैसे मेरी एक कंपनी है द मलबरी वेडिंग्स, हम लोग वेडिंग फिल्म्स बनाते हैं, राइट। Yes. मेरी आवाज अच्छे से आ रही है ना, क्लियर आपको? Yes. तो हम लोग वेडिंग फिल्म्स बनाते हैं, मलबरी वेडिंग्स, ठीक है। तो अब उसमें हम लोग लीड्स जनरेट करते हैं, और मेरी मेरी सेल्स टीम उनसे बात करती है,
उनसे बात करती है, उनकी रिक्वायरमेंट को समझती है, रिक्वायरमेंट को, एंड देन उसको कोटेशन देती है। अब वो लोग क्या करते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाते हैं और देखते हैं कि काम कैसा है, थोड़ा ब्रांडिंग वगैरह देखते हैं तो खरीदते हैं, ठीक है, इट हैपेंस, Yes. राइट। बट द केस इज दैट वो अभी जाके बनाया मैंने, आज से 3 साल पहले कुछ भी नहीं था, सिर्फ कुछ भी नहीं था, खाली होता था। बट अगर आप लोगों का, द थिंग इज दैट, अगर आपका कम्युनिकेशन क्लियर है, अगर आपका ऑफर बहुत अच्छा है, तो पर्सनल ब्रांडिंग डज नॉट प्ले एनी एनी बिग रोल। और खास तौर से अगर आप वेबिनार कर रहे हो, तो वेबिनार अगर आप 2 घंटे का कर रहे हो, तो 2 घंटे में आपका ऑथोरिटी बोलेगा, आपका नॉलेज बोलेगा, आपका कम्युनिकेशन बोलेगा, आपका ऑरा बोलेगा। तो अगर आप बोलेंगे ना, कोच है कोई और वो वेबिनार कर रहा है और बोल रहा है मेरी पर्सनल ब्रांडिंग हो, तो मैं बोलूंगा दिस इज अ सोल्ड आइडिया। आप रील्स बनाओ, कंटेंट डालो फॉर दिस थिंग, टू गेट द कॉन्फिडेंस इन योर नीश, राइट। आपको पता लग जाए बात क्या करना है। जैसे आप बहुत सारा कंटेंट बनाओगे ना रील्स पे, तो जब आप वेबिनार में जाओगे तो आप बहुत फ्लॉलेसली बोलते चले जाओगे, Hmm. क्योंकि आपने काम किया हुआ है। लेकिन अगर आप बिना कंटेंट रील्स बनाए सीधा वेबिनार में जाओगे, तो ऐसा नहीं कि नहीं कर पाओगे, कर लोगे, लेकिन वो ईज बहुत अच्छे से तब आ जाता है जब आप कंटेंट बना के जाते हो। तो तो ऐसा है, तो पर्सनल ब्रांडिंग में ऐसा नहीं बोलूंगा करना नहीं है, लेकिन अगर आप रुके हो कि पहले पर्सनल ब्रांडिंग करूं, फिर एक पॉइंट आएगा, फिर मैं उतरूंगा या उतरूंगी सेल्स करने या प्रोडक्ट बना के, तो देर इज नो, दैट इज एन एंडलेस थिंग, वो कभी उसका कोई जोन है नहीं। तो दोनों साइड साइड करते रहो। मेरी सिस्टर है, मेरी छोटी सिस्टर 9 साल छोटी है, वो भी कंटेंट बनाई खूब, रील्स वील्स पे बहुत अच्छा कंटेंट बनाई। वो अपना सब्जेक्ट जान गई कि मुझे बात क्या करना है कंटेंट बना बना के। लेकिन अब अल्टीमेटली उसका फॉलोवर बेस इतना ग्रो नहीं कर रहा था। मैंने बोला अब चुपचाप प्रोग्राम डिजाइन कर, ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोग्राम डिजाइन कर, एड्स चला, लोगों को बुला, एंड देन जस्ट गिव दिस ब्यूटीफुल पीस ऑफ थिंग दैट यू हैव क्रिएटेड टू द पीपल एंड सेल इट। ठीक है, पीपल नीड यू। तो अब वो उस पे शीज, और वो उसको समझ में आई अब ये बात। तो मैंने कहा जो तू कंटेंट बना रही है वो चलाती रहे, चलता रहेगा, तेरा होता रहेगा, लेकिन साइड बाय साइड सेल करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। सो सेल्स को सीखने के लिए भी कोई टेक्निक है क्या कि, और यू जस्ट देयर आर सो मेनी कोचेस हु से दैट इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर ओन प्रोडक्ट कि हाँ अगर मैं किसी और के रूम में बैठी होती और मेरे को कोई बेच रहा होता मैं खरीद लेती, देन दैट मीन्स यू हैव अ ब्यूटीफुल हाँ प्रोडक्ट. Is there a way that you make sure that you have created a massive value product? यार, मुझे लगता है ना कि सेल्स लोगों ने हवा बना रखी है, ठीक है। कुछ सेल्स में सीखने जैसा कुछ मुझे लगता नहीं है, पता नहीं, एंड स्पेशली वेबिनार सेल्स में। आई थिंक पीपल नीड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द बायर। वंस दे अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द बायर, सेल्स ऑटोमेटिकली हैपन। ठीक है, ठीक है। एक सेल होता है कि आप रोड पे जाके लोगों से बात कर रहे हो, सेल कर रहे हो, वो एक अलग सेल है। अभी हम लोग डिजिटल सेलिंग की बात कर रहे हैं, थ्रू वेबिनार, थ्रू वन टू वन, राइट। सो आई हैव अंडरस्टूड कि अगर आपके माइंड में कोई मनी ब्लॉक नहीं है कि मैं इससे पैसा कैसे मांगू या क्या रहेगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है कि आपका ब्लॉक ही बैठा हुआ है कुछ, राइट। तो उसको देखना पड़ेगा कि वो ब्लॉक क्या है, व्हाट इज दैट थिंग विच इज स्टॉपिंग यू, राइट। अगर जैसे आपका ब्लॉक क्लियर है कि भाई मुझे क्लियर है कि मुझे पैसे लेने में कोई दिक्कत नहीं है, देन प्रोडक्ट बनाओ, और प्रोडक्ट को ऐसे देखो, अगर ये मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा है तो ये कितनी बड़ी गलती कर रहा है, ठीक है। Hmm. ये जिस दिन आपको फील आ गया ना, तो आप डंके की चोट पे बोलोगे, आंखों में आकर डाल के, भाई आई हैव समथिंग क्रेजी थिंग, यू आर एट द फॉल्ट इफ यू आर नॉट कमिंग इनटू दैट। आई ट्रूली बिलीव इन दैट। लाइक अब्दुल्ला, दैट। बहुत सारे रोड ब्लॉक्स आते हैं, स्ट्रगल्स होती हैं, फेलियर्स आते हैं. You must also have faced them in this journey. Would you like to, share something, हंड्रेड some परसेंट one of your, 100%, 100%, 100% क्यों नहीं आते? बट द प्रॉब्लम इज दैट लोग अपने दिमाग में ना, जब जब भी कुछ ऐसा आता है ना, तो वो अपने आप को ऐसा कन्विंस करते हैं सोच के कि वाई यू कैन नॉट डू इट और वाई इट कैन नॉट बी डन, ठीक है। लेट्स से सेल्स नहीं हुई, लेट्स से, या लीड्स नहीं आ रहे, तो हम रादर देन थिंकिंग कि सॉल्यूशन क्या है, हम सोचने लग जाते हैं, हम वेरिडेट करने लग जाते हैं, क्योंकि मैं ऐसा हूं या ऐसी हूं इसलिए नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने आज से इतने साल पहले नहीं किया इसलिए नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने सेल्स की पढ़ाई नहीं करी इसलिए मैंने नहीं हुआ है, क्योंकि लगता है मुझे और सीखने की जरूरत है शायद इसलिए मैं सेल नहीं कर पा रही हूँ। एंड देन दो गो इनटू द लर्निंग लूप, फिर वही जाके 2 किताब पढ़ेंगे, फिर वो लाला लैंड में जाएंगे, खुश होंगे, और फिर जब एक्शन लेने की दोबारा बात आएगी, फिर उनके अंदर फियर आएगा, ठीक है। और फिर वो ठोकर खाएंगे, फिर वही करेंगे। आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ बैड आइडिया, वी शुड नॉट डू इट। आई एम जस्ट सेइंग वी पीपल आर कॉन्शियस ह्यूमन बींग्स।
हम लोग के अंदर कॉन्शियसनेस है, हम लोग एनिमल्स नहीं है, मतलब वी नो हाउ टू ऑब्जर्व द पैटर्न, वी नो व्हाट इज स्टॉपिंग अस, एंड वी कैन नो हाउ टू कॉन्शियसली ब्रेक दैट, Yes. राइट। तो अगर आपकी सेल्स नहीं हो रही है, चैलेंज आ रहा है, तो इफ यू जस्ट सी दैट विद क्लियर क्लैरिटी एंड अवेयरनेस कि ऐसा क्यों नहीं, क्यों हो रहा है, क्या कारण है, एंड यू हैव दैट क्लैरिटी टू डिग दैट डीपर एंड फाइंड आउट कि क्या सॉल्यूशन होगा, और काम करने निकलो विदाउट एनी विदाउट एनी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिटर्न, तो काम करता है। आई गिव यू वन एग्जांपल, सिंस दिस इज अ थ्योरी, आई शेयर विद यू द एग्जांपल। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक नीश ओपन किया, सिंस आई हैव बीन कोचिंग अ लॉट ऑफ फोटोग्राफर्स सिंस लास्ट फ्यू इयर्स। तो मैंने कहा यार फोटोग्राफी एक सर्विस बिजनेस है, ठीक है। तो अब मुझे सर्विस, मेरा जो मार्केटिंग एजेंसी है कोचेस के लिए वो सर्विस बिजनेस है, मेरा जो प्रोडक्शन कंपनी है वो सर्विस बिजनेस है। तो मैंने कहा यार मैंने लाइफ में 3 सर्विस बिजनेस को बनाया, अब इंडिया के जितने भी सर्विस बिजनेस ओनर्स हैं उनके लिए एक प्रोग्राम बनाया जाए, उनको दिया जाए। एंड लेट मी टेल यू, जब मैं उस प्रोग्राम को बना रहा था तो मेरे दिमाग में इतने ब्लॉकेजेस आए कि यार मार्केट में इतने सारे कोचेज हैं, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं बिजनेस वाले नीश में, तो यार मैं इसमें कैसे, ये वो फलाना ढिमका फालतू की चीजें मेरे दिमाग में आई, ठीक है। उन्होंने बोला अब्दुल्ला तू किस में बेस्ट है, तेरा क्या सुपर पावर है, एंड देन आई डग डीपर, हाँ डिग का थर्ड फॉर्म डग होता है ना, डग डीपर, ठीक है। मैंने बैठ के सोचा, मैंने कहा यार ऐसा क्या है, देन आई रियलाइज वन थिंग, आई सेड आई कैन से दिस विद गारंटी दैट if Abdullah is coaching you or if Abdullah is in the webinar, I am 99.99% joyful than the rest of the world. While I was talking to you over the phone, and I was feeling ki, wow, man, what an energy this person has. How do I match to that energy to, host him on this Insta Live? And I was like, oh my God, I love the energy that, you emit from yourself. And it is absolutely phenomenal. सच्ची में दिल से बोल रही हूँ. Thank you so much. Abdullah, do you think कि कुछ कुछ हमारे को जो अपनी एजुकेशन है, should we be, are there any books जो आपने पढ़ी हो, who are the mentors that you have followed, and also you had shared कि Sadhguru का inner engineering is one program that everybody should do, and it is a phenomenal this thing. Could you please guide a little about all that as well? यार देखो बहुत सिंपल सी चीज है, हर किसी को पता है पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बात करनी है, लोगों से अच्छे से बात करना है, अपने इमोशंस को पॉजिटिव रखना है, येट पीपल आर नॉट एबल टू डू। इंटेलेक्चुअल बीइंग्स कमिट सुसाइड, दैट्स वेरी सिंपल। तो अगर तुमको सब बातें पता है तो फिर तुम अप्लाई क्यों नहीं कर पाते, दिस इज माय क्वेश्चन। तुमको पता है अच्छा खाना खाना है, तुमको पता है डिसिप्लिन के साथ रहना, बट कर क्यों नहीं पाते। ज्ञान तो तुम्हारे सबके पास है, कोई नहीं ऐसा होगा जो इसके पास जो ये बोलेगा नेगेटिव सोचना चाहिए, और कोई बोलेगा पॉजिटिव सोचना चाहिए, दैट्स वेरी सिंपल। बट व्हाई दिस एनर्जी which is throbbing inside you, this shakti, this soul which is throbbing inside you, why it does not support you? It needs to be asked. Why this mind is not supporting it? Why it is not supporting you? It is because your energies are not vibrating. Your energies are not aligned. ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, but we'll understand. So to have this energy system with ease, to be at ease, to be joyful, to be pleasant, you have to work on it. Okay? And the work does not happen reading some books. If the reading books would have given the solution, the entire world would have been joyful. That's very simple. The most sad people on these people are the intellectual beings, the logical beings. अब मेरा काम बंद करवाओगे क्या? Right. I'm so so I'm not saying you should not only read books. Reading book is one part. Okay? Plus apart from that, you have to work on your energies. For that, some kriyas, yoga, sadhana is there. Now coming to the books, I open my book library daily and I read book. ठीक है, आई रीड बुक सो दैट आई मेट द अवेयरनेस ऑफ ऑल द बेस्ट थिंग्स। मेरे एप्पल स्टोर में जाओगे ना, ऐप स्टोर में तो बुक्स करके एक कैटेगरी आता है, अगर स्क्रीन शेयर होगा तो दिखाऊंगा। मेरे वहां पे पूरा सेग्रीगेशन, स्पिरिचुअलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप, मार्केटिंग सब। तो सुबह 5:30 6:30 बजे उठे, सबसे पहले उठते ही आजकल मैं किताब पढ़ रहा हूँ हु टू हायर पीपल, ठीक है, ठीक है, हाउ टू हायर पीपल एंड ऑल। तो किताबें मैं बहुत पढ़ता हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ, लेकिन सिर्फ किताबें पढ़ना इज नॉट द सॉल्यूशन। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू वर्क ऑन द फिजिकल बॉडी एंड देन Implementation. एनर्जी बॉडी।
तो यू आस्क मी अब्दुल्ला कौन कौन सी किताबें आप पढ़ते हो, देन आई वुड से सबसे पहले मैंने रॉबिन शर्मा को पढ़ना शुरू किया तो मेरा माइंडसेट बहुत अच्छा हो गया। फिर जो किताबें आप बताते हो, डीप वर्क एंड द ईट दैट फ्रॉग, मैंने पढ़ी हुई है, उससे मुझे काम करना आया। मैंने ईट दैट फ्रॉग या फिर डीप वर्क में एक चीज पढ़ी थी कि सबसे पहले वाला काम कर लो जो सबसे टफ है सुबह सुबह। Yes. ठीक है, वो मैं अभी भी अप्लाई करता हूँ। तो जो तो इट इज लाइक दैट। तो द द बुक्स आर लाइक द फायर्स इन योर लाइफ, वो आपको आग लगा देंगे, इग्नाइशन दे देंगे। मेरी लाइफ में किताब से जिंदगी बदली। अगर मैं रॉबिन शर्मा को नहीं पढ़ा होता तो मेरा फंडामेंटल्स बेसिक स्ट्रांग नहीं हुए होते। कौन सी रॉबिन शर्मा की कौन सी बुक पढ़ी थी आपने? बाहर वाले आई रेड हु विल क्राई व्हेन यू विल डाई फर्स्ट, आई रेड डिस्कवर योर डेस्टिनी सेकंड, आई रेड लीडरशिप विजडम थर्ड, आई रेड फैमिली विजडम फोर्थ। ठीक है, आई रेड आई रेड अ लीडर हु हैड नो टाइटल फिफ्थ। ये सारी किताबें मैंने पढ़ी हैं और दो दो तीन तीन बार पढ़ी है। और वाह, वन ऑफ द बेस्ट बुक दैट आई हैव एवर रेड फ्रॉम हिम इज डिस्कवर योर डेस्टिनी। वो किताब ने मेरी लाइफ चेंज की है। उससे बेस्ट मतलब, और सबसे पहली किताब जो पढ़ी थी द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, उसकी। कौन सी थी? द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। अरे ओके, गुड, ठीक है, वाओ। तो वो मेरी ऐसी किताब थी जिसने मेरा माइंड शुरुआती में ऐसा कर दिया। फिर उसके बाद मैंने और किताबें पढ़ी। आई रेड द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, क्रेजी स्टफ, उसने मेरा माइंडसेट को दैट स्ट्रॉन्ग इज अ कर दिया। ब्यूटीफुल बुक, यस। आई रेड थिंक एंड ग्रो रिच, आई थिंक 2 times आई हैव रेड दैट। अभी भी मुझे समझ में नहीं आती है बहुत ज्यादा, जब मैं पढ़ता हूँ बहुत डेप्थ है उसको, जितना पढ़ोगे उतना कम समझ, उतना कम यस। मतलब उतना ज्यादा क्लैरिटी आती है। बट अभी भी उसमें बहुत अथाह समुंदर है, दरिया है वो। ठीक है, so that is the third. Then I read Inner Engineering, which changed my life in 2020 by Sadhguru. उसके अंदर मैंने किताब पढ़ी वो। तो भाई उसके अंदर तब मुझे पता लगा कि कहाँ कहाँ काम करना है और क्या क्या चीजें होती है जो आपको आपके जॉय जॉय को सस्टेन करती है। अभी प्रॉब्लम क्या है, लोग जॉयफुल तो होते हैं बट इन इंस्टॉलमेंट्स में जॉयफुल होते हैं। ठीक है, मतलब अभी मैं रेस्टोरेंट में गया तो मैं बैठा था, मैं सब लड़कियों के लड़कों के चेहरे देख रहा था, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बैठे लेकिन सबके चेहरे उतरे हुए हैं। तो मैं सोच रहा था यार, व्हाट इज दिस, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा स्टाइल इतना अच्छा लग रहा है, बट अंदर से मुझे ऐसा क्यों सेंस हो रहा है तुम्हारी वाट लगी पड़ी है। ठीक है, तो आई एम नॉट मॉकिंग और समथिंग, बट आई एम जस्ट शेयरिंग के रियलिटी, वो एनर्जी सेंस होती रहती है। तो मतलब सब नहीं थे ऐसे, कुछ पीपल थे, मैं आई वॉज एबल टू सी दैट। सो व्हाट आई वांट टू शेयर इज आई थिंक वी लॉस्ट द कनेक्शन। आवाज आ रही है आपको? मेरा हाँ, नेटवर्क गया, अभी आपका आ गया? गई, अभी आ गई। मेरा नेटवर्क गया, आपका गया? नहीं नहीं, आपका नेटवर्क गया। मेरा गया, ठीक है। तो पहला, किताब पढ़ने से ना जो मेरा फाउंडेशन था, जो बेसिक्स था, वो बहुत स्ट्रांग हो गया। और अगर वो नहीं होता तो मैं पॉजिटिव उससे चीजें देखता नहीं, आउटलुक मेरा चेंज हुआ। तो ऐसा है, आजकल जो मैं किताबें पढ़ता हूँ, आजकल मैं कोचिंग के लिए अगर आप मुझसे किताब पूछोगे तो आप पढ़ो एक्सपर्ट सीक्रेट्स बाय रसल ब्रांसन, कम से कम 3 बार पढ़ो। ठीक है, वाह। आप पढ़ो ट्रैफिक सीक्रेट्स बाय रसल ब्रांसन, कम से कम 3 बार पढ़ो। आप .com सीक्रेट्स पढ़ो कम से कम 3 बार। राइट, ये तीनों बहुत अच्छी किताबें हैं। आपको अगर ऑफर क्रिएशन समझना है तो एलेक्स हरमोजी की 100 मिलियन ऑफर्स पढ़ो, तब समझ में आएगा। ओके। अगर आपको लीड समझना है तो एलेक्स हरमोजी की 100 मिलियन लीड्स पढ़ो। ठीक है, वो बहुत अच्छी किताब है। अगर आपको हायरिंग और टीम समझना है तो आप पढ़ो द हार्ड थिंग्स अबाउट द हार्ड थिंग्स, विच विल टेल यू हाउ टू हैंडल टीम्स, बिग टीम्स। ठीक है, ओके। अगर आपको ये समझना है कि राइट लोगों को कैसे पहचाने, कैसे हायर करें, देन यू रीड द बुक कॉल्ड हु। हम्म। इफ यू वांट टू रीड स्पिरिचुअल बुक्स, गो एंड रीड कर्मा। कर्मा पढ़ो सदगुरु की, और इनर इंजीनियरिंग पढ़ो। तो ये सारी किताबें मैं पढ़ता हुआ आया हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ, मेरे नोट्स बने रहते हैं, ऐसा है, लाइक दिस। Even I, when I started the book reading club, the first thing that came to my mind was जितने भी highly successful people and they make sure that they are reading every single day. But not only reading, but they are also implementing what they are reading. They are not reading पूरी book एक साथ पढ़ ली. Whatever bit they are reading, they are implementing it in their lives, and that is something I think I am also working towards कि चलो जो पढ़ रहे हैं उसको implement करते करते आगे बढ़ते हैं. 100%। बट Thank you क्वेश्चन for ये कि sharing लोग your. इम्प्लीमेंट करने का एनर्जी नहीं बना पाते हैं, दिस इज द चैलेंज। Yes. दैट दे नीड टू वर्क विद अवेयरनेस कि भाई क्यों, क्या रोक रहा है, किस लिए रोक रहा है। आज मेरे पास एक डॉक्टर का फोन आया सुबह, डॉक्टर 27 years ऑफ एक्सपीरियंस। शी सेड, अब्दुल्ला, व्हाई शुड आई अर्न सो मच ऑफ मनी?
Hmm. एंड व्हाई शुड आई अर्न, व्हाट इज माई वाई, आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट, मेरा मेरा वजह क्या है, मैं ढूंढ नहीं पा रही हूँ। तो मेरा 20 मिनट उसके साथ कॉल हुआ, तो आई हैव लर्न एनएलपी ऑन अ वेरी डीपर लेवल। तो मैंने 15-20 मिनट बात किया, एंड में शी गॉट द क्लैरिटी। एंड देन अब्दुल्ला, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक द एक्शन राइट नाउ, आई विल गिव यू ऑल द एक्शन पॉइंट्स, आई विल गिव यू द रिजल्ट्स, मैं आपको अपडेट करूंगी। और उसके अंदर एक फायर मैंने उसके अंदर देखा कि वो कर देगी, जस्ट बिकॉज शी वॉज नॉट हैविंग दैट कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस कि क्यों क्या रोक रहा है उसको, इट वॉज स्टॉपिंग। सो आई से वंस यू रीड अ लॉट ऑफ थिंग्स, देन व्हाई यू आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट दैट, आस्क डीपर, व्हाई। जितना डीपर पूछोगे ना, सवाल पूछोगे, आपको रीजन मिलेगा और फिर आप एक्टिवेट हो जाओगे। Hmm. And there is this book called Start with Why as well, यस right? करेक्ट वो भी करेक्ट। it is about that only. यस कि why समझ में आ गया, but what about the niche? So many coaches out there who are budding right now, उनको बहुत ज्यादा वो है कि भैया niche ही नहीं समझ में आ रहा, niche ही नहीं समझ में आ रहा. What do you think about that? यार देखो, अब आ गया चैट जीपीटी मार्केट के अंदर, ठीक है। तो आप अपनी स्किल्स डालो, अपना व्हाट डू यू लव डालो, आपको क्या पसंद है, अपनी स्किल्स डालो, और ऐसा कुछ मिल जाएगा। इकिगाई वाला कॉन्सेप्ट डाल दो, व्हाट डू यू लव, व्हाट डू स्किल्स डू यू हैव, और तीसरा मुझे याद नहीं है। और इससे Ikigai, पूछो भाई, Ikigai. हाँ वो, और इससे पूछो इकिगाई किताब में लिखा हुआ है, और इससे पूछो कि भाई क्या है ऐसा तुम्हारे पास, तो वो तुमको बताएगा तुम ये ट्राई कर सकते हो। उसमें से तुम एक चूज करो, ये सोच के कि मैं तो फेल होऊंगा या होंगी, ठीक है। बट विद वन थिंग कि अगर मैं फेल भी हो रही हूँ, तो आई विल मेक श्योर दैट आई विल गिव 100% इन फेलिंग। Hmm. यू गेट दैट। तो हम स्टार्ट करेंगे इस नीच में, हमें समझ में आ रहा है, बट वी विल गिव 100% इन टू दिस, हम जान लगा देंगे। उसके बाद अगर फेल भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, आई विल से कि भाई Exactly. मैंने अपना 100% दिया। 100% दिया. Wonderful, दूसरे पे wonderful. कूदेंगे, फिर तीसरे पे कूदेंगे, कुछ तो चमकेगा। बट हम एक ही को करने में 1 साल लगा देते हैं, तो फिर तो पता नहीं। वेरी ट्रू. बहुत बिल्कुल बढ़िया, सही बोले. um, इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो. व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स दैट यू आर हेडिंग टुवर्ड्स? ये नेक्स्ट स्टेप ये है कि अभी मैंने अपने जब मैं भी एफबीआर से आया, तो मैंने सिड्स केम टू मी एंड ही लुक्ड इनटू माय आईज। तो आई वाज ऑफ फ्रॉम लास्ट 2 एफबीआर, में आ नहीं पा रहा था, एंड आई वाज जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद लॉट ऑफ थिंग्स। आई लुक्ड इनटू आईज एंड आई सेड, सिड्स योर किड इज बैक। तो he said you never left off, right? And it is वाओ. true, my heart never left off. So so I saw a lot of success stories, and while they were sharing, I could see that passion and ignition in the audience. उनके अंदर वो फायर दिख रहा था कि अब तो हम भी करना है। एंड व्हेन दोज स्पीकर्स वर स्पीकिंग, लोगों के अंदर एक आग लग रही थी कि अब हम भी करेंगे। और वो मुझे उनकी आंखों में चमक देख के ना, आई क्राइड। मैंने कहा यार, if these stories are bringing transformation in people's lives, then what I'm going to launch my event in the month of May. I'll invite Wow. 10 speakers from my community. I'll prepare them. I'll teach them. I'll tell them how to present on the stage, and I'll make a history, and I'll keep on continuing this for the human well-being. That once you see a person doing this, you feel like I can also do this. And once you do that to yourself, you improve your well-being. So my motivation is now well-being of people through creating success stories on stages and giving inspiration to the my entire community and entire people whom I know. Wow. That is beautiful vision and mission, I would say. Yes. Wow. Um, what are the 3-4 things that you swear by as your, I would say maybe a morning ritual or a night ritual, or maybe the core values that you abide by, the non-negotiables that you never let go of? तीन, पहला है मेरा लर्निंग नहीं रुकता भाई। सुबह उठती किताब खुलती है, ठीक है, ई बुक, मेरा बुक लाइब्रेरी खुलता है। मैं चाहे 1 पेज पढ़ूं, 2 पेज पढ़ूं, मैं पढ़ता हूँ। और मैं पढ़ता ऐसा हूँ कि मैं सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ता, पढ़ के उसको अप्लाई करता हूँ, देखता हूँ उसका एप्लीकेशन मेरी लाइफ में कहाँ कहाँ है, और उससे कुछ रिलेटेड एक्शन ले लेता हूँ थोड़ा बहुत। और वो पहला है। उसके बाद थोड़ा बहुत काम करता हूँ। उसके बाद मैं 1 घंटा 45 मिनट, 1 hours and 45 minutes योग साधना करता हूँ, ठीक है। सो आई स्टार्ट दैट एट 8:30, समटाइम्स एट 7:30, और वो सीधा मेरा जाता है 1 hour and 45 minutes। आई डू सम क्रियाज जो विच आई लर्न फ्रॉम ईशा फाउंडेशन, शक्ति चलन क्रिया, शांभवी महामुद्रा क्रिया, शून्य मेडिटेशन, आई डू ऑल दिस थिंग्स।
ये अगर नहीं होगा तो मैं खाने को छूंगा भी नहीं उस दिन. आई कैन नॉट, आई विल नॉट टच इवन ड्रिंक. मेरी वाइफ चाहे खड़ी रह जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ बड़े से बड़ा सेलिब्रेशन होता है उस दुनिया का, आई विल होल्ड माई हैंड्स. बोलूंगा भाई मैं नहीं ले सकता बिकॉज मैंने अपनी साधना नहीं की है. तो 8:30 7:30 बजे आई विल जस्ट हैव दिस एंड आफ्टर दैट आई हैव माय फूड, ड्रिंक, जो भी मैं एबीसी जूस पीता हूँ, एप्पल बीटरूट कैरेट. 12 बजेंगे तो मैं कुछ ग्रेन्स लेना स्टार्ट करूंगा, ठीक है. और 12 से 4-5 के बीच में जब तक सूरज डूबा उगा हुआ है तो मैं खाऊंगा. उसके बाद सूरज डूब गया तो अब खाना होता क्या अब्दुल्ला भूल जाता है. देयर इज नो सच थिंग्स इन माय लाइफ फूड. तो वैसा ये नॉन नेगोशिएबल्स है मेरे लाइफ के. अंडा दूध मांस मछली में खाता नहीं. आई एम प्योर सात्विक पर्सन. अनियन लहसुन भी अभी छोड़ा हुआ है. मतलब अगर कहीं शादी वादी में गया वहां डला हुआ है तो वो खा लेता हूँ, मतलब उसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ, लेकिन कॉन्शियसली मेरे फूड में नहीं आता है कभी भी. एंड and I always, whatever I achieve, I keep in mind that I am always indebted to my mentors, Sadhguru, Siddharth, and my some other mentors are there, offline mentors are there. Himanshu Agarwal is there, whom I'm very close to. Right. So three people, like these people, three people have different superpowers. I always pay gratitude whenever I hit something big in my life. So this is it. Wow. Wow. Wonderful. What is that one thing that you would ask all the audience who will be, who were with us in this Insta Live, as well as the people who will be watching later? What is that One thing one I need to message ask that you them would or like? tell them. One thing I need to ask them or tell them. What would you suggest them, guide them? दोनों बता दो actually. Ask them as well and tell them as well. I'll give you the core operator of my life, जिससे मैं विजन बनाता हूँ. मेरा अभी 100 करोड़ का विजन है. मैं पूरी दुनिया को बोल रहा हूँ 100 CR. नॉट बिकॉज मेरा 10 करोड़ में पेट नहीं भर रहा, ऐसा नहीं है. मेरे पास मतलब मैं कुछ नहीं खाता है. मेरा खर्चा 10,000 भी नहीं होगा महीने का, ठीक है. राइट. तो नॉट बिकॉज आई मुझे 100 करोड़ कमाना है. नॉट नॉट दैट द मोटिवेशन. Motivation is this, that people are not able to grow in their life because they have some conscious or unconscious limitations, right? Limitations of sales, limitation of not feeling worth, limitations of not feeling that I'll be able to do it, limitation of what people will say, limitations of will I be able to do it, limitations of A, B, C, D to Z reasons, right? But all the biggest happinesses in your life that you have got by breaking that limitations. आपकी लाइफ में जो भी कुछ बड़ा आपने फोड़ा है तो वो इसलिए नहीं हुआ कि आपने चंद पैसे कमाए. आपने बोला पैसे, उस लिमिटेशन को जो तोड़ टूटा उसकी खुशी ज्यादा थी, फिर पैसे आए. लेट से आपने पहली बार वेबिनार किया तो पैसे कमाए, उसकी खुशी नहीं थी. वेबिनार में सेल्स हो गई और वो सेल्स आपकी लिमिटेशन थी, वो टूट गई, उसकी खुशी की आप खुशी मनाते हो. Yes. एंड आफ्टर एवरी लिमिटेशन you are like, oh my god, I broke this limitation, and you take up a new avatar, you become a new human being. So to grow, to reach anywhere in life, you have to break a lot of limitations, which could be conscious to you, which could be unconscious to you. So my only goal is that take your limitations up, break those up, and take a new avatar and become a new human being every single day. That's it. Wow. Wow. This is good. I have also heard somewhere, बोलते हैं कि हर रोज or maybe keep trying doing something new off and on, because that is the way you keep on breaking your limitations. Yes. Each time you do something new, बहुत सारी अंदर से resistances आएंगी, hesitations होंगी, and then the moment you do it and you're done with it, you feel like, oh wow, I broke one more limitation Yes. for myself. Yes. um जब that's डर that's लगे तभी करना है. जब डर लगे तभी करना है. तभी करना है. तभी करना Yes. है. Seeing is tough, doing is easy. Yes, absolutely. Break your limitations, and आपको जो मजा फील होगा ना, बस चलो. मतलब जो दिमाग में आ जाए, अब तो चलो इसकी तरफ चल पड़ते हैं, काम करना शुरू करो. कर दो, सच बता रहा हूँ, कर दो. आप उसके पीछे देखो वो आपको रोक क्या रहा है. अगर नहीं कर पा रहे हो तो रोक क्या रहा है, उसका अवेयरनेस तो लाओ. आपका हो सकता है सराउंडिंग आपको रोक रहा हो, कुछ घर का कुछ हो, जो चीज आपको रोक रही है उसको लिखो, सॉल्व करो. हम ना अनकॉन्शियसली हमें क्या रोक रहा है पता भी नहीं होता है कई बार. बस बस क्या बोलूं, चलते चले जा रहे होते, पता ही नहीं चल रहा किस क्या ऑपरेटिंग मोड है.
वो कॉन्शियसनेस अवेयरनेस आ जाएगा ना, क्यों रोक रहे हैं, तो वो एक्शन आ जाएगा। बट बट जब डर लगे तभी करना है, जब मन नहीं करे तभी करना है। दैट्स वेरी सिंपल। नहीं तो जब पता चल जाए कि क्या रोक रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैसे पता चलेगा कि क्या रोक रहा है, और फिर उसको ब्रेक कैसे करना है? You have to understand the art of inquiring, self inquiry. Self inquiry means close your eyes, sit. कई लोग तो आंखें बंद भी नहीं करते होंगे दिन कभी भी 15 मिनट, मेडिटेट भी नहीं करते होंगे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. You download, everyone who is watching this, download an application called Miracle of Mind by Sadhguru. It is a 7 minutes of meditation daily. अगर नहीं कर सकते, पता नहीं कैसे करते, तो वो गाइडेड मेडिटेशन है, वो डेली कर लो. इट विल चेंज योर लाइफ. ठीक है. तो what happens is, the very simple thing is that you just start to do meditation. और अगर नहीं कर रहे हो तो आंख बंद करो भाई, सवाल पूछो क्यों नहीं कर रहा है. ठीक है. बस इस बात, क्यों नहीं, क्या रोक रहा है. तो एक जवाब मिलेगा कि मुझे डर लगता है. सेकंड सवाल आएगा, तुझे डर क्यों लगता है. तो जवाब आएगा कि अगर मुझे लोगों ने मना कर दिया तो. ओके. तो तो तुझे लोगों ने मना कर दिया तो फिर सवाल आएगा कि मना कर दिया तो क्या होगा. तो बोलेगा नहीं होगा. तो फिर जवाब आएगा वो तो अभी भी नहीं हो रहा है. You get that? ट्रू। You get that? तो ऐसे करके यू हैव टू, वी पीपल आर वेरी स्मार्ट टू फाइंड आउट द वेज. ऑल द आंसर्स आर विद इन. जवाब तो अंदर ही है. हम तो लोग ड्रामा करते हैं, उस कोच के पास बैठो, उस कोच के पास बैठो. कोच के पास इंस्पिरेशन के लिए जाओ भाई. अरे भाई, उससे इंस्पायर हो जाओ और फिर करो. लोग चाहते हैं मुझे कोच कर दो, मैं अंदर से नहीं कर पा रहे. भाई आप जवाब अपने अंदर है, बैठ के ठंडे दिमाग से सोचोगे तो हो जाएगा. ठीक है. I'm being very much honest यार. But I'm not saying कि सब ऐसा काम करते हैं. किसी लोगों को सच में जरूरत पड़ती है. जैसे I'll tell you why. Because आज जो डॉक्टर कुलप्रीत मेरे साथ हैं, मे बी शी वॉज नॉट एबल टू फाइंड आउट द वेज, बट शी सैट विद मी. अच्छा, मैं ये बात थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ बोलना चाहूंगा. आई थिंक आई हैव लर्नड एनएलपी. आई हैव लर्नड फ्रॉम कोचेस. दैट इज व्हाई आई एम एबल टू डू इट फॉर माई सेल्फ राइट नाउ. राइट. सो आई से कि a stage will come in your life when you work hard enough with on you कि आप अपने रास्ते निकालने लग जाओगे. शुरू में आपको लोगों की जरूरत पड़ती है. इट इज राइट. मुझे शुरू में बहुत कोचिज का मैंने, आई एम उन्हीं की वजह से मैं आज हूँ. तो आई थिंक आई एम इवॉल्व. तुम ज्यादा इवॉल्व बात कर रहा हूँ, तो मुझे समझना पड़ेगा जो स्टार्टर्स है. अगर यू फील कि अच्छा मुझे इससे हेल्प मिल सकती है, गो एंड टेक द हेल्प, सिट विद देम. राइट. बट अगेन यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड, यू नीड टू बी सेल्फ सफिशिएंट एज वेल. कि मुझे अपने आप को भी, हर वक्त आपके साथ कोच नहीं रहेगा, आपको अंदर इंक्वायरी करनी आनी चाहिए कि क्यों नहीं हो रहा है, क्या रोक रहा है. एंड देन यू मेक इट डन. Wow. Thank you. Thank you. Thank you for so many insights, so many Balbon moments in this session. And thank you to your wife and your family for, sparing you for so long. And thank you to you for being with us on this Insta collab. And I am deeply, deeply, deeply in gratitude for you having you here today. थैंक यू सो For मच. the ones who have watched this Insta Live, I hope you have got massive value. We are having Abdullah in our Growth X Weekend session very soon. If you wish to be there, you got to get in there. All right. So, thank you once again, And guys, Abdullah, for being for Karishma, I would like to say one thing. I know this lady. I've been to her sessions with the love that she teaches people, the vibrance that which she teaches. It is very addictive. ठीक है. Like once I have learned, I went to her session and I was not able to come out of the session. I was no, what was that magnetic effect. मैं सोच रहा था यार कितना अच्छे से पढ़ा रही है, कितना मजा आ रहा है, एक एक लाइन हो. It is like that. So you have that charisma, and the dedication she puts. I have seen her consistency for her community, for herself, and for the impact that she's creating. तो भाई लाइफ में अच्छे लोग ना बहुत कम दिखते हैं. ठीक है. मतलब अच्छे लोग, मतलब जो पीपल हु आर लिविंग व्हाट दे आर प्रीचिंग. ठीक है. वो बहुत कम दिखता है और उनके ऑरा में झलकता है. एंड करिश्मा इज वन ऑफ दैट पर्सन हु हैज दैट ऑरा. Thank you, thank you, thank you so much. It means a lot. Thank you. आई ट्रूली मीन अ लॉट. मैंने ऐसा नहीं कि कम्युनिटी है या लोग हैं ऐसा बोली बोला है. सच में आई ट्रूली मीन दिस. मैंने आपके मैसेजेस देखता रहता हूँ, आते रहते हैं. वो एक कंसिस्टेंसी है यार. लोग इसको नहीं कर पाते, आप कर पाते हो, तो ऑलरेडी आप बहुत सारे लोगों से ऊपर हो. Thank you. Thank you so much, Abdullah. That means a lot to me. And
to have you in the GrowthX weekend as well. Thank you Yes. for spending your time while traveling. Thank you so much. Bye bye. Beautiful. Thank you so much, Karishma. God bless you. Namaskaram. Thank you so much. Thank you. Done. Namaskar. Okay.